Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature. A short monsoon diary. Okay, this lesson has been written by Ruskin Bond. Okay, any author of this lesson is Ruskin Bond. Okay. Do you know what a diary is? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. One of the most famous diaries published as a book is The Diary of Anne Frank. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Okay, read on. Okay, यानी क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? ओके, यह लंबे समय तक प्रतिदिन लिखी जाने वाली निजी अनुभवों का संग्रह होता है। आप भी डायरी का प्रयोग एकदम या भविष्य में ही की जाने वाली योजनाओं को लिखने में कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध डायरी जो पुस्तक के रूप में छापी गई एनी फ्रैंक की डायरी है। ओके, यहाँ नीचे रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति के शांत, गुप्त और चमत्कारिक और जीवन की छोटी छोटी खुशियां और दुखों को प्रकट किया है। आइए पढ़ें। June 24, the first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hills. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago, the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. Okay, through the mist, Bijou is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. Okay, यानी जून 24 मानसून की धुंध का पहला दिन। और यह विचित्र बात है कि जैसे कि यह धुंध पहाड़ी पर चढ़ती आ रही है, सारे के सारे पक्षी चुप हो गए हैं। शायद इसलिए धुंध को उदास कहा जाता है क्योंकि न केवल यह पहाड़ियों को ढक लेती है अपितु इन्हें चुप रहने के आवरण में धकेल देती है। 1 घंटा पहले वृक्ष पक्षियों की आवाज के साथ गाते से प्रतीत हो रहे थे और अब जंगल मौत के समान शांत सा प्रतीत हो रहा है, जैसा कि आधी रात हो गई हो। के इट वर मिडनाइट, जैसे कि आधी रात हो गई हो। इस धुंध में बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है। मैं उसे पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए सुन सकता हूं, किंतु मैं उसे देख नहीं सकता। प्लीज टर्न ओवर। June 25, some genial early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. Okay.
The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. ओके यानी 25 जून कुछ वास्तविक आरंभिक मानसून वर्षा गर्म और नमी वाली इस ठंडे अधिक ऊंचाई पर इतना ज्यादा चारा भी नहीं जितना सारा साल होता है। ठीक है, पौधे भी इसे जानते हैं कि प्रथम कोबरा लिली लंबी घासों में से अपना सिर उठाता प्रतीत होता है जब मैं बैंक और डाकखाने की तरफ जाता हूं। ओके, एक धुंध एक निश्चित निजित्व रखती है, यानी अपनापन रखती है। एक स्कूल जाने वाले लड़के ने इस पर्वतीय स्थल और घाटी का वर्णन एक वाक्य में करने को कहा है। मैं केवल इतना ही कह सका, एक ऐसा स्वर्ग जो शायद कभी हुआ हो। ओके, आई कुड से वाज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक ऐसा स्वर्ग जो शायद कभी हुआ हो। ओके, June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Okay, other news arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow, fitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. Okay, next page. A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insect all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. ओके, यानी 27 जून वर्षा कुछ मौसमी आगंतुकों के आगमन का समाचार लेकर आई। तेंदुओं और कई हजार जोंकों के आगमन का भी। ओके, कल दोपहर ही yesterday afternoon the leopards कल दोपहर ही तेंदुओं ने नौकरों के क्वार्टरों के नजदीक से स्कूल के नीचे से एक कुत्ते को उठा लिया था। शाम को इसने बिज्जू की एक गाय पर हमला किया था। ओके, किंतु बिज्जू की मां के आने पर वहां से वो भाग गया, जो चिल्लाती हुई गालियां बकती हुई वहां आ गई थी। और जहां तक जोंकों की बात है, मैं शीघ्र ही प्रतिदिन रक्त गंवाने का आदी हो जाऊंगा। दूसरे अन्य आगमन लाल रंग के मिनीवेट, मादाएं पीले रंग की होती हैं, उनका है, जो चमकते मोतियों की तरह वृक्षों की पत्तियों में शांत उछलते हुए घूमते हैं। चाहे वृक्ष कितनी ही पत्तीदार क्यों न हो,
ये चमकदार रंग वाले पक्षी अपने आप को छिपाकर नहीं रख सकते। यद्यपि बिल्कुल शांत रहकर भी वे कभी कभी बिना देखे निकल जाते हैं। उनके साथ ही डोंगो नामक पक्षियों को डोंगो नामक पक्षियों का जो जोड़ा है वो अनावश्यक रूप से उग्र हो जाते हैं और मिनीवेट को दूर भगाते हुए दिखाई देते हैं। ओके, अ ट्री क्रीपर्स मूव्स रेपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। एक वृक्ष की बेल ओक वृक्ष के तने पर कीड़ों को छोड़ती हुई तेजी से फैल जाती है। ओके, क्योंकि अब वर्षा यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ कीट भक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। ओके, यानी देयर इज नो डेल्ट ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। यानी अब यहाँ कीट भक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन इज August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake at the same time. It doesn't keep me from sleeping. Okay, it is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. Okay. 2 अगस्त। सारी रात वर्षा लहरदार टीन से बनी छत पर जोर से आवाज करती हुई बरसती रही है, यानी बारिश होती रही है। यहाँ अब कोई तूफान नहीं आया, ना ही कोई गर्जना हुई, बस केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा की आवाज है। यह मुझे जगाते हुए लेटे रहने में सहायता करती है और साथ ही यह मुझे सोने से नहीं रोक पाती। ओके, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। यह मुझे सोने से नहीं रोक पाती। इट इज ए गुड साउंड टू रीड बाई, यानी पास पढ़ने के लिए बैठकर यह एक बहुत अच्छी ध्वनि है। बाहर बारिश हो रही है, अंदर शांति है, और यद्यपि टिन की छतों पर अनेक सुराख हैं जिससे आ रही फुहारों में से वर्षा से अछूता भी हूं और साथ साथ वर्षा छू लेने का एहसास भी कर रहा हूं। ओके, August 3. The rain stops. The clouds begin to break up. Okay. The sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells in the oak tree. Okay. A crow shakes the raindrops from his feathers and cows disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine. Okay, यानी 3 अगस्त। In this lesson, author says that वर्षा रुक जाती है, बादल छटने लगते हैं और मेरे बाएं तरफ सूर्य पहाड़ी पर चमकने लगता है। एक महिला लकड़ियां काट रही है। मैं गायों के गले की घंटियों की आवाज सुन सकता हूँ। ओक के वृक्ष पर कौआ अपनी पंखों पर से वर्षा की बूंदें झड़कता है और यानी वो अपने पंख फड़फड़ाता है।
और अप्रसन्नता से काँव काँव करता है। पानी एक रिसते हुए पाइप से टपकता है और तभी स्वच्छ और शुद्ध सीटी बजाते हुए एक छोटे पक्षी का गीत घाटी की गहराइयों से एक मीठे रहस्य की तरफ बाहर निकलता है। ओके। August 12. Endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy. Now where to go? Pace the room. Look out the window at a few bowing umbrellas. At least it isn't cold. Please turn over. Rain. At least it isn't cold rain. The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. Okay. यानी 12 अगस्त को देखिए क्या होता है। 12 अगस्त को अंतहीन वर्षा का स्थायी धुंध होती है, यानी बारिश इतनी होती है कि उसकी धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमने सूर्य को 8-9 दिनों से नहीं देखा है। हर चीज़ गीली और नमी से भरी हुई है। कहीं पर जाने का कोई काम नहीं है। कमरे में चहलकदमी करो और खिड़की से बाहर कुछ हिलती हुई छतरियों को देखते रहो। कम से कम यह सर्दी वाली वर्षा नहीं है। पहाड़ियाँ अब नशीली हरी भरी हो गई हैं क्योंकि अब लौटते मानसून वाले फूल उत्पन्न होने लगे हैं। जंगली बाल्सम, डलिया, बेगोनिया और ग्राउंड ऑर्चिड। ओके, यानी जंगली बाल्सम, डलिया, बेगोनिया और ग्राउंड ऑर्चिड। August 31. Okay, August 31. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. Okay. In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm green and upright ground orchids. Mauve, lady's slipper and the white butterflies orchid put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Okay, snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in a roof, attics and gardens. A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to amusement of the children. Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchunders are lucky. They bring money and sure enough I receive a check in the mail. Not a very large one, but welcome all the same. ओके, यानी 31 अगस्त। देखिए, इन दिस पैराग्राफ ऑथर सेज दैट यह अगस्त माह का अंतिम दिन है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। यह अगस्त महीने का अंतिम दिन है और यह घनी मानसून की हरियाली चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कोबरा लिली के बीज लाल हो रहे हैं, जो संकेत देते हैं कि वर्षा समाप्त होने वाली है। थोड़े ही दिनों में, इन ए फ्यू डेज,
यानी थोड़े ही दिनों में ये फर्न एक तरह की घास होती है, पीला होना आरंभ हो जाएगी, और किंतु अभी तो ये बिल्कुल स्थिर, हरे और सीधे खड़े हुए हैं। अनेक किस्मों के फूल घाटी के पास युक्त मैदानों पर एक रंगीन फैशन को दर्शाते हैं। चट्टानों की दरारों में से लाल, पीले और मजेंटा रंग के जंगली डेलिया अपने सिर उठाए प्रतीत होते हैं, जहां उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। ओके, अपने बिलों और मादों के पानी से भर जाने के बाद सांप और चूहे छतों, दुछत्तियों और गोदामों की शरण में आ जाते हैं। एक छछूंदर जिसकी दृष्टि कमजोर है कमरे में इधर उधर भाग रहा है। यह बच्चों के मनोरंजन का अच्छा साधन है। इसे मत मारो, उनकी दादी कहती हैं। छछूंदर भाग्यशाली होते हैं, ये धन लाते हैं। ओके, ये धन लाते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। यानी और निश्चित ही मुझे डाक में एक चेक प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी रकम तो न थी, किंतु पैसे का हमेशा स्वागत किया जाता है। ओके, October 3, we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. ओके, यानी 3 अक्टूबर जब हम मानसून की वर्षा से सीधे सर्दियों की वर्षा पर आते हैं, ऊंचाइयों पर फर्क है। शाम की ओलावृष्टि के पश्चात आसमान और पहाड़ियों पर एक सुंदर सुनहरी रोशनी भरी हुई है। ठीक है, यानी आसमान और पहाड़ियां एक सुंदर सुनहरी रोशनी से भरे हुए हैं। January 26, winter reigns in the hills. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves or lemons on roof, drumming on dressed dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. Okay, as I pause near a window, the rain stops and starts again, and the trees, no longer green but grey, menace me with their loneliness. ओके, यानी 26 जनवरी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि पहाड़ियों पर ऑथर सेज दैट पहाड़ियों पर सर्दी की वर्षा। ओके, यानी इस घर की शांत खामोशी में जब मैं नितांत अकेला हूँ और मेरा दोस्त जो यहाँ था जा चुका है, यहाँ बहुत अकेलापन, बहुत शांति। जब मैं इस खामोशी के लिए बैठा हूँ, चारों तरफ से वर्षा के संगीत में धीरे हुए तो निरंतर पानी की बौछार पत्तियों पर, नींबू के वृक्षों पर और डेलिया और खिड़की के शीशों पर आवाज करते हुए गिरती है, जबकि धुंध ने घर को अंधेरे के आगोश में ले लिया है। जब मैं खिड़की के पास रुकता हूँ, वर्षा रुक जाती है और फिर आरंभ हो जाती है, और वृक्ष जो अब ज्यादा हरे नहीं रहे, अपितु भूरे हो चुके हैं, मुझे उनके अकेलेपन के साथ जकड़े हुए हैं। ओके,
March 23, late March, end of winter. The blackest cloud I have ever seen scattered over Missouri, and then it held marvels for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. Okay, in the last stanza, author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि 23 मार्च का अंत, सर्दी का अंत, यानी मार्च के लास्ट में सर्दी खत्म हो जाती है। अब तक देखे बादलों में सबसे काला बादल मसूरी पर छा जाता है, ठीक है। और तब आधे घंटे तक ओले बरसते रहे हैं। ओलों की तरह कोई आसमान को साफ नहीं कर सकता। और जब मैं यह लिख रहा हूं, मैं एक इंद्रधनुष को आसमान में बनता हुआ देखता हूं। Even as I write, I see a rainbow forming. यानी मैं एक इंद्रधनुष को आसमान में बनता हुआ देखता हूं। Okay, is that clear? Thank you, students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.